تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظرنامہ بنا جس نے یکا یک تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 97 ہجری میں دمشق میں سلیمان بن عبد المالک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں قتیبہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے، طارق بن زیاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک مثال ہے۔ بعد میں اگرچہ ترک اور افغان فاتحین کے ذریعے ہندوستان میں تو اسلام پہنچ گیا، مگر چین اور فرانس کی سرحدوں سے واپسی کے بعد عالم اسلام کی سرحدیں 1400 سال کے بعد بھی کاشغر یعنی مشرقی ترکستان سے آگے نہ بڑھ سکیں اور نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا۔ اس کے علاوہ 1402 عیسوی میں جنگ انقرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید الدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ جس نے یکا یک تاریخ کا رخ موڑ دیا اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسخیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر 1815 میں واٹرلو کے میدان میں نیپولین کو شکست نہ ہوتی تو شاید دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوم کی تباہ کاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ایک ایسی ہی مارکہ آرائی کا تذکرہ ہے جو 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین جالوت کے مقام پر پیش آئی اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ عامت الناس کو تو چھوڑیں، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکہ عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین الشریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ مارکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرآشوب تھی اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے اور نہ اس کے بعد۔ دور جدید میں 21ویں صدی کا آغاز اگرچہ اب تک مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی ہی صورتحال لیے ہوئے ہے۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں 1219 میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بلاخیز 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماوراء النہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بخارا، تاشقند، مرو اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کیں۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اقتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 میں اقتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا اور 1251 عیسوی میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا اور چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگیں جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے سوا وہاں کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا تھا۔ عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ 1241 عیسوی میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کرتے ہوئے اس شہر کو بھی تخت و تاراج کر دیا۔ 1237 میں باتو خان بلغاریہ پر قبضہ کر چکا تھا اور 1241 میں اس نے لائیگٹس کے میدان میں جرمنوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دے دی۔ مختصر یہ کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گری اور فتوحات جاری تھیں۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق،
शाम फलस्तीन के शहरों को फतह करके मिस्र पर हमला आवर हो गया। मिस्र के बाद अब बराह रास्त मंगोल खतरा हिजाज की मुकद्दस सरजमीन के सामने आ गया था, जिसमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के शहर आबाद थे। यानी अगर हलाकू खान मिस्र को भी फतह कर लेता तो इसके बाद हिजाज के मुकद्दस मकामात तक इसकी राह में कोई काबिल ज़िक्र हुकूमत नहीं थी। 1260 ईस्वी मुताबिक 658 हिजरी के रमज़ानुल मुबारक में मिस्र और शाम के सरहदी इलाके ऐन जालूत के मुकाम को हलाकू खान की 3 लाख फौज मिस्र के ममलूक सुल्तान के 20,000 के मुख्तसर से दस्ते के सामने खड़ी थी। 13वीं सदी ईस्वी के सियासी मंजरनामे के बाद आए अब जरा ममलूक सुल्तान का कुछ तारुफ हासिल करते हैं, जो न सिर्फ बगदाद की खिलाफत ख़त्म होने के बाद काहिरा की अब्बासी खिलाफत की शक्ल में आलम इस्लाम का मरकज़ करार पाई, मगर 300 साल तक सलीबी हमला आवरों के सामने बैतुल मक़दस का दिफा करती रही। इस्लामी तारीख की खासियत है कि मुसलमानों ने गुलामों के साथ कभी भी वो सलूक रवा नहीं रखा जो रूमियों के ज़माने से लेकर पिछली सदी तक मगरबी ममालिक में किया गया। इस्लामी माशरे में गुलामों को बराबरी का दर्जा देने के नतीजे में गुलाम दीनी और दुनियावी सतह पर तरक्की के बुलंदतरीन मकाम तक पहुँचे। मिस्र के ममलूक सुल्तान और हिंदुस्तान का ख़ानदान गुलामा इन गुलाम सरदारों पर मुश्तमिल था, जो तरक्की करते करते हाकिम वक्त बन गए। मिस्र में बहरी और ममलूक हुक्मरानों ने 300 साल तक हुकूमत की। इन सलातीन में जानशीनी के वक्त सख्त कशमकश होती और ताकतवर गुलाम अमीर सुल्तान बन जाते, यानी इनमें जानशीन के तौर पर बेटा हुकूमत नहीं हासिल कर पाता था। 1223 में ख्वारज़म शाह के एक दरबारी के घर बेटा पैदा हुआ और इसका नाम महमूद रखा गया। ख्वारज़म शाह किसी बात पर इस दरबारी से खफा हो गया और इसे कैद कर लिया गया। इस तरह ये आला ख़ानदान गर्दिश में आ गया। इस दौरान ख्वारज़म की सल्तनत चंगेज़ी हमलों की जद में आकर तबाह हो गई और तातारियों ने मुसलमान बच्चों और जवानों को कैद करके गुलाम बनाकर फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। महमूद भी इन्हीं बच्चों की तरह गुलाम बनकर मुख्तलिफ हाथों फ़रोख्त होता रहा और आखिर में मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त के लिए लाया गया। मिस्र में मुख्तलिफ हाथों से होते हुए महमूद फ़ातिमा नामी एक नेक खसलत खातून की तहवील में आ गया। फ़ातिमा का एक बेटा फौत हो गया था जिसका नाम बैबरस था। महमूद की शक्ल इस लड़के बैबरस से मिलती थी, चुनांचे फ़ातिमा ने महमूद का नाम बदलकर बैबरस रख दिया और इसे अपना बेटा बना लिया। फ़ातिमा का एक भाई मिस्र के सुल्तानुल मुल्क सालेह नजमुद्दीन के दरबार से मुंसलिक था। इसकी मुलाकात जब बैबरस से हुई तो वो इसे काहिरा सुल्तान के दरबार में ले गया। सुल्तानुल मुल्क सालेह ने कई लावारिस लड़के अपनी किफ़ालत में लिए हुए थे। इन लड़कों की अच्छी तालीम और तरबियत की जाती, खुराक का ख्याल रखा जाता और सख्त जंगी तरबियत के मराहिल से गुजारा जाता। इस तरह ये लड़के सुल्तान के वफादार बन जाते और सुल्तान के ज़ाती फ़ौज में शामिल कर लिए जाते। यही तरीका बाद में तुर्कों ने इख्तियार किया और उस्मानी सलातीन की मशहूर ज़माना अफसानवी शोहरत की हामिल फ़ौज यानी चरी ऐसे ही गुलाम लड़कों पर मुश्तमिल होती थी। बहरहाल महमूद बराह रास्त सुल्तान मिस्र के ज़ेर निगरानी तरबियत पाकर रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से मिस्र की फ़ौज में शामिल हो गया और अपनी लियाकत और महारत के सबब मिस्री फ़ौज का सालार शुमार होने लगा। मिस्र, शाम और फ़लस्तीन के सरहदी इलाकों पर मुश्तमिल ऐन जालूत का मैदान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस मैदान को ऐन जालूत इसलिए कहते हैं कि यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह को शिकस्त दी थी। इस मारका आरई को अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में बयान किया है, जिसका तर्जुमा ये है, और कत्ल किया दाऊद ने जालूत को और अल्लाह ने इसे सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और जो चाहा इसे सिखाया। ऐन जालूत के मायने जालूत का चश्मा के हैं और इस इलाके में अब 658 हिजरी में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर था। इस वक्त मिस्र का हाकिम ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज़ था और रुकनुद्दीन बैबरस इसका सिपाह सालार। सुल्तान कुतुज़ की फ़ौज किसी भी तरह 3 लाख के लश्कर जरार का मुकाबला करने के काबिल ना थी और अब मिस्र की शिकस्त का मतलब था कि हलाकू खान की रसाई हिजाज मुक़द्दस के शहरों और हरमैन अश-शरीफैन तक हो जाती और फिर मराकश, शुमाली अफ्रीका के मुस्लिम इलाके और फिर उंदलस। मगर इस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम इस्लाम को बचा लिया। एक मौजज़ा रूनुमा हुआ और हलाकू खान को अपनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा लेकर कराकरम वापस जाना पड़ा। कराकरम के चौथे खाकान आज़म मंगू खान का इंतकाल हो गया और दुनिया भर से तातारी शहजादे कराकरम के मरकज़ी जिरगे, जिसे कुरुलताई कहा जाता था, इसमें शिरकत के लिए कराकरम रवाना हो गए। हलाकू खान ने अपने नायब
कतबगा खान को 20,000 का लश्कर सौंप कर वापस कराकरम की राह इख्तियार की। यहाँ इस धमकी आमेज खत का जिक्र ज़रूरी है जो तातारियों की तरफ से कुतुज़ को लिखा गया था। ये ख़त हलाकू खान की तरफ से लिखा गया था या कतबगा खान की तरफ से, इस बारे में तारीख़ में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बहरहाल तातारी सफ़ीर ने यह ख़त सुल्तान कुद्स को पेश किया। ये इसका फरमान है जो सारी दुनिया का आका है कि अपनी पनागाहें मुनहदिम कर दो, इताअत कबूल कर लो। अगर तुमने ये बात ना मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंदो बाला और जावेदानी आसमान के अलावा कोई नहीं जानता। गालिब इम्कान है कि ख़त हलाकू खान ने कराकरम रवानगी से कबल भेजा था, जिसमें साफ अंदाज में ऐलान जंग किया गया था। बहरहाल तातारी सफ़ीर ने रऊनत आमेज़ अंदाज में ये ख़त सुल्तान मिस्र के सामने फेंक दिया। ये अंदाज देखकर सुल्तान मिस्र और रुकनुद्दीन बैबरस की आंखें गुस्से के आलम में सुर्ख हो गईं। सुल्तान को ख़त के मंदरजात पढ़कर सुनाए गए तो सुल्तान ने सफ़ीर से कहा कि हमारा हलाकू खान से कोई झगड़ा नहीं, लिहाजा इसे चाहिए कि हमें हमारे हाल पर छोड़कर वापस चला जाए। इस पर सफ़ीर ने जवाब दिया, तो गोया चाहते हो कि तुम्हारा भी वही हश्र किया जाए जो हम तुम्हारे खलीफा का करके आए हैं। जान लो कि हमारे आका की कुव्वत लामहदूद है और दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तातारी सफ़ीर का ये अंदाज़ देखकर सुल्तान मिस्र आग बगोला हो गया और उसने कहा, इन तातारियों की ज़ुबानें गुद्दी से खींचकर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। हमारी तरफ से ख़त का जवाब यही है। बहर तौर 15 रमज़ान 658 हिजरी का मुताबिक 1260 में ऐन जालूत के मैदान में मंगोल सालार कतबगा खान अपने लश्कर के साथ मुकीम था कि सुल्तान कुत्ज़ और अमीर रुकनुद्दीन बैबरस अफवाज मिस्र के साथ आ मौजूद हुए। हलाकू खान की रवानगी के बाद दोनों लश्करों में अददी तवाज़न तकरीबन बराबर हो गया था, क्योंकि तातारी लश्कर का बड़ा हिस्सा हलाकू खान अपने साथ ले गया था। अमली तौर पर अफवाज की कमान रुकनुद्दीन बैबरस के पास थी। बैबरस तातारियों के किस्से सुनकर कहा करता था कि वक्त आने दो, हम इन वहशियों को बता देंगे कि सिर्फ वो ही लड़ना नहीं जानते बल्कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकी गर्दनें दबोच सकते हैं। कतबगा खान को हलाकू खान की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि इसकी वापसी तक इसी जगह क़याम करे और मिस्र पर हरगिज़ हमला आवर ना हो। अमीर रुकनुद्दीन बैबरस को जब हलाकू खान की वापसी की इत्तला मिली तो इसने सुल्तान कुद्स को फ़ौरन मंगोलों पर हमला करने का मशवरा दिया। इस तरह बाकायदा तौर पर आगे बढ़कर रुकनुद्दीन बैबरस ने मंगोल लश्कर पर हमला कर दिया। ऐन जालूत की इस तारीख साज जंग में रुकनुद्दीन बैबरस ने तातारियों पर इनका अपना तरीक़ाए हर्ब इस्तेमाल किया। इसने अपने चंद दस्ते घाटी में घात लगाकर बिठा दिए। बैबरस ने इब्तदाई तौर पर पसपाई का अंदाज इख्तियार किया और मंगोल इसकी चाल में आकर घाटी में फंस गए। घात लगाकर दुश्मन को तंग जगह लाकर फंसाना तातारियों का अपना अंदाज जंग था, जो रुकनुद्दीन बैबरस ने खुद इन पर इस्तेमाल किया और माजी की फतूहात के नशे में सरशार कतबगा खान बैबरस की चाल में आ गया। घाटी में घात लगाए महफूज मिस्री दस्ते ने मंगोलों को तहस नहस कर दिया। मंगोल लश्कर में अबतरी फैल गई और वो दो अतराफ से मुसलमानों में घिर गए। बैबरस ने मंगोल फौज का कत्लेआम किया और उन्हें इस बुरी तरह से मारा कि तारीख में इससे पहले तातारियों के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कतबगा खान बैबरस के हाथों गिरफ्तार हुआ और बैबरस ने इसे कत्ल कर दिया। मंगोल लश्कर मुकम्मल तौर पर कत्ल या गिरफ्तार हो गया था। मकतूल सालार कतबगा खान की लाश की नुमाइश काहिरा की गलियों में तातारी कैदियों के साथ की गई और बाद अज़ां इन कैदियों को भी कत्ल कर दिया गया। ऐन जालूत के मैदान में तातारियों की शिकस्त की खबरें शाम और फ़लस्तीन की मंगोल मकबूजात में आग की तरह फैल गई। मुसलमानों ने मंगोल हाकिमों के खिलाफ बगावत कर दी और जगह जगह से खबरें आने लगीं कि मुसलमानों ने तातारियों से शहर वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इस तरह देखते ही देखते शाम और फ़लस्तीन की अक्सर मकबूजात मंगोल तसल्लुत से आज़ाद हो गईं। इस तरह मंगोलिया से उठने वाली काली आंधी 40 साल तक मजलूम मुसलमानों का खून पीकर 1260 ईस्वी में ऐन जालूत के मैदान में रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों अपने अंजाम को पहुंच गई। अगरचे इसके बाद भी तातारियों ने मुसलमानों के इलाकों पर कई हमले किए, मगर इनके नाकाबिले शिकस्त रहने का तासुर
ख़त्म हो गया था और अब मुसलमान हर जगह डट कर इनका मुकाबला करते थे। हिंदुस्तान पर मुसलसल तातारी हमले और खिलजियों का कामयाब दिफा इसकी एक रोशन मिसाल है। पहले अर्ज किया जा चुका है कि ममलूक सलातीन में जानशीनी का कोई निज़ाम नहीं था, बल्कि ताकतवर अमीर ही हाकिम और सुल्तान बन जाता था। मार्का ऐन जालूत से कबल सुल्तान मिस्र सैफुद्दीन कुद्स और रुकनुद्दीन बैबरस के दरमियान मुआहिदा तय पाया था कि फतह के बाद शाम में हल्ब और इसके अतराफ के इलाके बैबरस के तसर्रुफ में दे दिए जाएंगे, मगर बाद में सैफुद्दीन कुद्स मुकर गया और इस तरह कुद्स और बैबरस के दरमियान रंजिश पैदा हो गई और मार्का ऐन जालूत के चंद दिनों बाद ही पुरस्रार तौर पर सुल्तान कुद्स कत्ल कर दिया गया और रुकनुद्दीन बैबरस सुल्तान मिस्र बन गया। सुल्तान कुद्स के पुरस्रार कत्ल में तारीख में सुल्तान बैबरस का नाम मशकूक अंदाज में लिया जाता है। सुकूत बगदाद के हवाले से हलाकू खान को तो अक्सर क़ारीन जानते होंगे, मगर इस मर्द खूंखार का अंजाम क्या हुआ इससे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। आइए यहाँ कुछ तज़किरा हलाकू खान के अंजाम का किए देते हैं। मंगोल क्रूरताई से फारिग होकर हलाकू खान वापस लौट आया। वो सुल्तान बैबरस से इंतकाम लेने के लिए बेचैन था। दूसरी तरफ कुदरत का कानून हरकत में आ चुका था। इस दफ़ा तातारियों को उनके अपने ही हाथों से शिकस्त खाना थी। बुखारा की खानकाह के शेख सैफुद्दीन एक सूफी बुजुर्ग थे और उनकी कोशिशों से चंगेज़ खान का एक दूसरा पोता और जोजी खान का बेटा बरकी खान मुसलमान हो गया। कबल इसके कि हलाकू खान सुल्तान बैबरस से बदला लेता और हिजाज मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी करता, बरकी खान की सरबराही में एक मंगोल लश्कर इसके सामने आ गया। इस तरह चंगेज़ खान के दो पोते आमने सामने आ गए और बरकी खान के हाथों हलाकू खान को शिकस्त हो गई और इस शिकस्त के सदमे से ताब न लाकर वो हलाक हो गया। इस पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मशहूर ज़माना शेर कहा है, आया योरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस को नवी और आखिरी सलीबी जंग का हीरो भी तस्लीम किया जाता है। मंगोलों से फारिग होकर इसने शाम, फ़लस्तीन और मिस्र की ईसाई मकबूजात की तरफ तवज्जो दी और एक के बाद एक ईसाई इलाकों को फतह करना शुरू किया। 1270 में फ्रांस का शहनशाह लुई नहम यरूशलेम हमारा है का नारा लगाता यूरोप की सलीबी अफवाज नाइट्स और टेम्पलर्स को साथ लेकर मिस्र पर हमला आवर हो गया। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस ने यहाँ भी शहनशाह लुई नहम का डट कर मुकाबला किया और सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार कर दिया। फ्रांस का शहनशाह लुई नहम बैबरस के हाथों गिरफ्तार हो गया और बाद में इसे कसीर रकम के इव्ज रिहा कर दिया गया। इस सलीबी जंग के बाद दोबारा यूरोपीय अफवाज सलीबी जंग के नाम पर आलम इस्लाम पर हमला आवर नहीं हुई। इस तरह इसे आखिरी सलीबी जंग कहा जाता है। यानी मंगोल यलगार और सलीबी जंगे दोनों का खात्मा सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस के हाथों से हुआ और अफसोस की बात यह है कि ये किरदार हमारी तारीख में अब वक्त की गर्द तले दब कर गुमनाम हो चुका है। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का एक और अनमोल कारनामा जो अक्सर लोगों के इल्म में नहीं, वो खिलाफत अब्बासिया का अहिया है। सकूत बगदाद के बाद आलम इस्लाम खिलाफत जैसी मरकजियत से महरूम हो चुका था। आलम इस्लाम पर सख्ता तारी था कि खिलाफत के खात्मे के बाद अब इसका अहिया कैसे और किसके हाथों होगा। अल्लाह ताला ने इस मुबारक काम के लिए भी सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस का इंतखाब किया। 1262 ईस्वी में खलीफा ज़ाहिर का एक बेटा अबुल कासिम अहमद मंगोल कैद से रिहा होकर मिस्र आ गया। सुल्तान बैबरस इसे काहिरा ले आया और उस वक्त के मशहूर आलम दीन अजीज़ुद्दीन अब्दुस्सलाम के सामने अबुल कासिम के हाथ पर बैत खिलाफत करते हुए खिलाफत अब्बासिया का अहिया किया। इस तरह आलम इस्लाम को खिलाफत अब्बासिया मिस्र के रूप में मरकजियत हासिल हो गई। अगरचे ये खिलाफत बराए नाम होती थी और इक़्तिदार ममलूक सुल्तान के पास ही होता था, मगर फिर भी खलीफा को आलम इस्लाम में एक एहतराम हासिल था। ये खिलाफत उस्मानी तुर्कों के हाथों मिस्र की फतह तक कायम रही और फिर बाद में खिलाफत का इदारा उस्मानी तुर्कों को मुंतकिल हो गया। इसके अलावा सूडान के ईसाई बादशाह डेविड को भी सुल्तान बैबरस ने शिकस्त से दो चार किया और किलाउल मौत के बातनी हशीशियन फिदाइयों के खिलाफ भी सुल्तान बैबरस ने हमले किए। आलम इस्लाम का ये अजीम सालार और मुजाहिद आज़म 1277 ईस्वी में
اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے تاریخ دانوں نے سلطان بیبرس پر بہت کم لکھا ہے اور تاریخ کے طالب علم بہت کم اس بارے میں واقفیت رکھتے ہیں۔ منگول سیلاب سے حرمین الشریفین کی حفاظت، فرانس کے شہنشاہ سے بیت المقدس کا دفاع اور بغداد کی تباہی کے بعد خلافت اسلامیہ کا دوبارہ احیاء سلطان رکن الدین بیبرس کے وہ سنہری کارنامے ہیں جو اسے ہمیشہ تاریخ اسلام میں زندہ و جاوداں رکھیں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ اپنے دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔